Welcome to SLD online class 7th standard mathematics. In my previous video I had explained you the second chapter, that is multiplication and division of integers. So in that video we have learned about the how to multiply the integers. Now in this video I am going to explain you the how to divide the integers. Here we are going to learn division of integers. मैं आपको लास्ट वीडियो में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स का चैप्टर एक्सप्लेन की थी और उसमें का हाफ चैप्टर एक्सप्लेन की थी, वो था प्रैक्टिस सेट 8, वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स था. अभी ये चैप्टर में ये वीडियो में आपको डिवीजन ऑफ इंटीजर्स सिखाने वाली हूँ, इंटीजर्स को कैसे डिवाइड करना चाहिए. सो see the formula that we have used in multiplication of in the division, that same formula we are going to use in the division of integers. Now here we are going to learn how to divide a positive integers and to divide any positive integers by a negative integers, and how to divide the negative integers by a negative integers. These things we are going to learn in practice set 9. When one integer is divided by another non-zero integer, it is customary to write the denominator of the quotient as a positive integer. If the denominator has the numerator has the negative integer and denominator has a positive, we are going to write the denominator as a positive integer and numerator as a negative integer. If both the numerator and denominator has the negative integers, we are going to give the positive sign for them. We can cut that minus because we know that formula minus equals to division of integers. What? We will learn the formula first. What is the formula? Plus you will get the positive answer. Positive we will get the positive answer. Negative positive we will get the negative answer. And positive negative we will get the negative answer. And positive negative we will get the positive answer. This is our formula. This formula we had used in the multiplication of division also. See, for example, this I am showing you the example how to solve. If they have given the number both positive, this is our first example, 6 divided by 2. This is our answer. 6 divided by, this is our question, 6 divided by 2. So we are going to write in a fraction form 6 by 2. हमारा क्वेश्चन है 6 divided by 2, तो हमें इसको फ्रैक्शन में लिखना है 6 by 3. तो आपको वर्किंग कॉलम यहाँ ड्रॉ करना है यूजिंग अ स्केल. वर्किंग कॉलम में आप डिवाइड करो. सी हियर 6 और 2. ओके, जब आप डिवाइड करोगे तो ये आपका क्या है, ये आपका डिवाइजर है, ये आपका डिविडेंट है, और यहाँ जो आंसर सी 6 2 3 6, यू विल गेट द 0. ये क्या है आपका, ये आपका डिवाइजर है. डिवाइजर मतलब जिससे आपको डिवाइड करना है. ये आपका डिविडेंट है. डिविडेंट मतलब आपको इसको डिवाइड करना है. ये आपका रिमाइंडर है. रिमाइंडर मतलब आप डिवाइड करने के बाद आपको क्या रिमेन हुआ है. ये आपका क्वोशंट है. क्वोशंट मतलब ये आपका आंसर है. ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 है. ये आप क्वोशंट, रिमाइंडर, डिवाइजर ये सब आप अपने सेकेंड स्टैंडर्ड में ही पढ़े हो. So I am telling you again. So if you will divide 6 by 2 positive number, you will get the answer plus 3. Positive answer.
our second example is 7 divided by -2. See here, 7 divided by -2. 7 बाई, आपको यहाँ पे -2 दिया गया है तो माइनस को आपको निकालना है। माइनस को आप निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे -1, क्योंकि -1 ही लेना है आपको, और कोई नंबर नहीं लेना। अगर -2 लोगे तो आप 2 को 2 से -2 को मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, 2 नहीं आएगा। सो -1 लोगे तो क्या होता है, जो नंबर आप मल्टीप्लाई करोगे वो ही नंबर आएगा। अभी मैं 1 को 2 मल्टीप्लाई करूँ 2 ही आएगा ना, मुझे यहाँ पे 2 ही आएगा। वैसे तो हियर आपको यहाँ पे दिया गया है, इफ वन इंटीजर इज डिवाइडेड बाय एनी नॉन जीरो इंटीजर, इट विल बी रिटर्न टू द डिनोमिनेटर ऑफ द क्वेश्चन एज अ पॉजिटिव इंटीजर। कोई भी नंबर आप डिवाइड करोगे जीरो से, नॉन जीरो नंबर से, तो वो आपको पॉजिटिव में ही लिखना है। तो आपको यहाँ नीचे नेगेटिव नंबर दिया गया है ना, तो आपको ये नेगेटिव साइन जो है, अभी देखो यहाँ पे आप लिखोगे 1 बाई -1, ओके, इंटू 7 बाई 2, ऐसे आएगा। तो यहाँ -1 है, यहाँ पे +1 है, तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होगा ना, तो आपको -7/2 ऐसे आपको लिखना है। सीयर यहाँ +1 है, यहाँ -1 है, यहाँ 7/2 है। आप 7 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 7 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा। तो यहाँ पे आया, तो यहाँ पे प्लस माइनस से आपको फॉर्मूला पता है, प्लस माइनस इक्वल्स टू माइनस, so you will put the minus sign, we will get this answer. Our third example, if both the number is negative, for example -13 divided by -2. See here, -13 divided by -2 equals to, again how we did the last sum, we took the minus sign out now, like that only we are going to take out the minus sign. See here, -1 into 13 by -1 into 2. Minus minus, you know the formula, minus into minus equals to minus, equals to plus or minus, you will get here plus. फॉर्मूला क्या है, माइनस माइनस का पॉजिटिव आएगा ना, पॉजिटिव साइन आएगा। सी हियर, सो 13 1s are 13, 2 1s are 2, here minus minus, this will be cut off, so here you will get plus sign, like this. अगर नेगेटिव साइन, दोनों को नेगेटिव साइन है तो आपको फॉर्मूला, आपको पहले माइनस निकालना है, तो माइनस निकालने के लिए आप -1 करके डालोगे, इंटू 13 इंटू 30 इंटू 2 आएगा। तो 13 1s are 13, 13 2s are 1 2s are 2, ओके। आफ्टर दैट यू विल हियर साइन देखना है, माइनस माइनस से न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में माइनस माइनस है, तो क्या होगा, माइनस माइनस का फॉर्मूला आपको पता है, माइनस माइनस प्लस साइन आएगा, तो माइनस माइनस कट हो जाएगा, तो आपको यहाँ प्लस आएगा, तो आपको +13/2 लिखना है। और 13 2 से नहीं डिवाइड होता है, इसलिए हम फ्रैक्शन फॉर्म में ही लिख के छोड़ देंगे। ये मेरा एग्जाम्पल था। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू द प्रैक्टिस सेट 9. नाउ practice set 9. Before solving the practice set 9, we are going to write the formula. You will write plus plus, you will get the positive answer. Positive positive, you will get the positive answer. Negative positive, you will get the negative answer. Positive negative, you will get the negative answer. And negative negative, you will get the positive answer. This is our formula, हमारा formula है। Our first question is
minus 96 divided by 16. See, they have given like this. Now we are going to write in the division form. Minus 96 by 16. Now we have to divide it. First we are going to take out that minus sign. First step, what will? Minus 10. Minus 1 into 96 by 16. Like this we will take it out. Now we are going to divide 16 and 96. See here, 96 divided by 16. Now you are in 7th standard, you know the 16 tables. So 16 6 are 96. You will get the answer. 6 is the answer. So how you will write? Minus 1 into 6. Minus 1 into 6, you will get the minus 6. This is your answer. देखो चिल्ड्रन, यहाँ पे हमें आंसर क्वेश्चन दिया गया है माइनस 96 डिवाइडेड बाई 16. तो हमें उसको डिवीजन फॉर्म में लिखना है. डिवीजन फॉर्म में लिखने के बाद आपको माइनस साइन निकालना है. माइनस साइन निकालने के लिए आपको कभी भी -1 डालना है. तो ये 1 जो आप डालोगे ना, तो माइनस साइन सेपरेट हो गया है. तो आपको 96 डिवाइडेड बाई 16 करना है, क्योंकि कोई भी डिवीजन में आपको नेगेटिव आंसर नहीं आएगा, पॉजिटिव ही आंसर आएगा. तो आपको नेगेटिव निकालना है. जो नेगेटिव साइन आप निकालोगे तो आप -1 करके डाल के, और नेगेटिव साइन आप साइड में रखे हो. जब आपको आंसर मिले, आप डिवाइड करोगे 96 बाई 16. यहाँ पे आप डिवाइड करोगे, वर्किंग कॉलम में आप डिवाइड करोगे. 16 6 96 आएगा. सो यहाँ पे आपको रिमाइंडर 0 आएगा. तो आपका आंसर क्या है? क्वेश्चन क्या है आपका? 6 है. तो आंसर आपका 6 है. -6 है आपका आंसर. तो यहाँ -1 आप बाहर जो निकाले थे, वो -1 से आप मल्टीप्लाई करोगे. तो मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो ये नंबर, यहाँ आप नंबर को जो -1 साइन डाले माइनस, तो आंसर को माइनस साइन डालना है. यहाँ पे आप देखो फॉर्मूला देख सकते हो. माइनस negative positive will get the negative answer. So you will write here negative sign to the answer. ऐसे आपको ये सॉल्व करना है. Now my second sum is, question is 98 divided by -28. See here, 98 divided by -28. अब ये माइनस को आपको निकाल के लेना. तो 98 डिवाइडेड बाय -1 इंटू 28 ऐसे आएगा. सो अभी आपको यहाँ देखना है, आप 28 का टेबल्स नहीं जानते हो. तो 8 है ना, यहाँ पे लास्ट में 8 है. तो 8 क्या होता है? 2 के टेबल्स में जाता है. ऐसा नो 2 के टेबल्स में जाएगा. तो आपको कैसे क्या करना है? यहाँ पे वर्किंग कॉलम में 98 डिवाइडेड बाय 28 डिवाइडेड बाय 2, ये दोनों नंबर को आपको 2 से डिवाइड करना है. सी एफ फर्स्ट 98 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा? 49 आएगा. 42 49s are 98 0. So you will write here 49 -1 into, now 28 you are going to divide again by 2. 2 1s are 2, 2 4s are 8 0. Here what is your answer? 14. यहाँ पे 14 आएगा. अभी 49 और 14 आया. 49 और 14 कौन से टेबल्स में जाएगा? 7 के टेबल्स में जाएगा ना. यहाँ पे 9 है, यहाँ 4 है. तो 9 2 के टेबल्स में नहीं आता है, 3 के टेबल्स में आता है. लेकिन 14 जो है 3 के टेबल्स में नहीं आता है. ओके, वैसे देखना है, आपको देखना है कौन से टेबल्स में जाएगा. ये 9 जो है 4 के टेबल्स में नहीं आएगा, 5 के टेबल्स में नहीं आएगा, 6 के टेबल्स में नहीं आएगा. जो लास्ट नंबर रहता है वो नंबर आपको देख के डिवाइड करना है दूसरे नंबर से. सी हियर, नाउ 49 डिवाइडेड बाय 14, इट बोथ द नंबर आर डिविजिबल बाय 7. 7 का टेबल्स आपको आता है, दोनों नंबर 7 में जाता है. सो
you will divide 49 by 7. 7 sevens are 49. You will get here 7. Again you will write here minus divided by minus 1 into. Now 14 again you are going to divide by 7. 7 twos are 14. Here you will get 2. अभी see here minus 7 into divided by minus 1 into 2. What happened? 2 ones are 1. Here you will write minus 2. तो ये माइनस साइन आप ऊपर लेके जाओगे, ऊपर डालोगे -7/2. ये आपका आंसर है, क्योंकि 7 और 2 कोई भी टेबल्स में नहीं आता, 1 के टेबल्स में डिविजिबल है. तो आपका आंसर है फ्रैक्शन फॉर्म में आएगा 7 -7/2. क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है प्लस माइनस इक्वल्स टू माइनस. आपको यहाँ प्लस दिया, यहाँ माइनस दिया है, तो आपका साइन क्या रहेगा? माइनस आंसर आएगा 7/2. यहाँ पे देखो 98 दिया है डिवाइडेड बाय -28 दिया गया, तो आपको डिवीजन फॉर्म में लिखना है. डिवीजन फॉर्म में लिखने के बाद आपको माइनस साइन को निकालना है. तो माइनस साइन निकालने के लिए आप -1 डाल के माइनस साइन को निकालोगे और 98 28 को डिवाइड करोगे. और यहाँ लास्ट नंबर आपको देखना है 88. 2 के टेबल, पहले 2 से देखना है. 2 के टेबल्स में 8 डिविजिबल है, तो दोनों नंबर को आप 2 से डिवाइड करोगे. जब आप 2 से दोनों नंबर को डिवाइड करोगे तो आपको 49 by -1 into 14 आएगा. तो अगेन यू आर गोइंग टू सी द लास्ट नंबर 9 and 4 आया है. 9 और 4 कोई भी टेबल्स में नहीं. 49 और 14 आपको 7 के टेबल्स में जाएगा, तो आप 7 से उसको डिवाइड करोगे. जब आप 7 से, यहाँ पे देखो 7 से दोनों नंबर 7 से डिवाइड करना है. दोनों नंबर आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपको 49 7 जा 49 आएगा, तो आपका आंसर यहाँ 7 आएगा. 7 2 जा 14 आएगा, तो आपको यहाँ 2 आएगा. तो यहाँ -1 है, तो 2 यहाँ पे आप लिखोगे 7 डिवाइडेड बाय -2. -2 है. अगर आपको न्यूमिनेटर में 7 -2 दिया गया है, तो आपको डिनोमिनेटर में -2 दिया गया है, तो उसको न्यूमिनेटर में लेके जाना है और न्यूमिनेटर में माइनस डालना है. तो यहाँ -7/2 आएगा. आपका आंसर ऐसे रहेगा. नाउ अवर थर्ड क्वेश्चन इज -150 डिवाइडेड बाय -25. -150 डिवाइडेड बाय -25. ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में दोनों में माइनस साइन है, तो यहाँ पे आप माइनस साइन निकालना. -1 into 150 डिवाइडेड बाय -1 into 25. नाउ 150 और 25 कौन से टेबल्स में जाएगा? 150 और 25 5 के टेबल्स में जाएगा ना, तो दोनों नंबर को 5 से डिवाइड करोगे. 150 डिवाइडेड बाय 5. 5 3s are 15. 0 0, you will bring the 0 down. 5 zeros are 0. Then how much you will get the answer? 30. -1 into 30 divided by -1 into 25. You are going to divide by 5. 25 divided by 5. 5 5s are 25. Here you will get the 0. What is your answer? 5. Here you will write -1 into 5. Now again you are going to divide 30 and 5. In 30 tables you will get the 30 divided by 5. 30 5 के tables में divide होता है. So you will divide here 30. 5 6 are 30. What is your answer? 6. -1 divided by -1 into 6. See here, यहाँ माइनस माइनस साइन है. आपको माइनस माइनस का फॉर्मूला पता है. माइनस माइनस यू विल गेट द पॉजिटिव आंसर. तो यहाँ पे माइनस माइनस कट हो जाएगा, तो आपको +6 आंसर आएगा. ये आपका आंसर है.
Now in practice set 9 our second main is write 3 divisions of integers such that the fractional form of each will be 24/5. आपको फ्रैक्शन ऑफ 3 डिविजनल इंटीजर्स का फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, जिसका फ्रैक्शन है ए 24/5, तीनों का 24/5 रहेगा। आप जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखते हैं ना, आपको मैं 6th स्टैंडर्ड में जैसे हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखते हैं, सेम वैसे ये भी लिखना है। अभी 21/5 को हमें क्या करना है, 1 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 24/5 into 1 into 1. Here you will get 24 ones are 24 and here 5 ones are 5. Here what you will write, 24 divided by 5. ऐसे अभी कौन से नंबर से, 2 से हम लोग करेंगे। 2 भी ले सकते, कोई भी नंबर, 3, 2, 4, 5, any number you can take and you can multiply and you have to write that number in the division form. That answer you will get now, that you are going to write in the division form. 24 into 2 by 25 into 2. दोनों नंबर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर जो है एक ही नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है। 2 4s are 8, 2 2s are 4 by 2 5s are 10. तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 48 डिवाइडेड बाय 10, ये आपका सेकेंड हुआ। नाउ third divisions of integers we are going to write 24/5. 24 into, you can take a negative integers to multiply now. नेगेटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पे नेगेटिव ले रही हूँ। -5, आप -3 भी ले सकते हो, -4 भी ले सकते हो, या +3 ले सकते हो, या +4 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ओके, मैं नेगेटिव ले ही हूँ, तो यहाँ पे 5, दोनों नंबर अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नेगेटिव इंटीजर से ही मल्टीप्लाई करेंगे। सी हियर 5 24 120, तो यहाँ पे माइनस साइन है 5 को, तो यहाँ मैं माइनस साइन डालूंगी। डिवाइडेड बाय 5 5 25, तो यहाँ पे माइनस साइन है, नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे मैं नेगेटिव साइन डालूंगी। इक्वल्स टू -120 डिवाइडेड बाय -25। ओके, ऐसे लिखना है। आप यहाँ पे कोई भी नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स भी लेके मल्टीप्लाई कर सकते हो, नेगेटिव इंटीजर्स भी लेके आप सॉल्व कर सकते हो। आपको फ्रैक्शनल ही लिखना है, फॉर्म ऑफ 24, आपको डिवीजन फॉर्म में लिखना है। आपको फ्रैक्शन नंबर दिया है 24/5, उसको आप 3 डिविजनल इंटीजर्स लिखना है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाई हूँ। एक कोई भी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है और 24 डिवाइडेड बाय 5 को जो है ना फ्रैक्शन नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना है और आपको उसको डिवीजन फॉर्म में लिखना है, डिवीजन का साइन दे के लिखना है। तो यहाँ पे मैं आपको बताई हूँ कैसे लिखना है। मैं पहले 1 से मल्टीप्लाई करी पॉजिटिव से, फिर से 2 से पॉजिटिव ही ली, लास्ट में क्या ली हूँ, नेगेटिव नंबर ली हूँ। मैं यहाँ नेगेटिव नंबर ली हूँ, आप पॉजिटिव नंबर भी ले सकते हो। यहाँ पे मैं -5 ली हूँ, 2 नंबर छोड़ के आप 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, 6 भी, एनी नंबर यू कैन टेक, let it be positive or negative, but you had to multiply both the numerator and denominator by the same number itself. So here I complete my practice set 9 and the chapter has been finished. यहाँ पे मैं अपना प्रैक्टिस सेट 9 फिनिश कर रही हूँ, ख़त्म हो रहा है। और यहाँ ये प्रैक्टिस सेट 9 के साथ साथ ये चैप्टर, सेकेंड चैप्टर जो है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स भी ख़त्म हो रहा है।